तो ये तुम लोगों को ऑलरेडी पता है एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं और उस ट्रायंगल का हम लोग क्या करते हैं, इफ वी डू व्हाट, इफ वी टेक ऑल द थ्री एंगल्स, है कि नहीं, दिस एंगल, this angle and this angle. So this is angle 1, this angle 2, this is angle 3. So यहाँ से हम लोग क्या मिलेगा, angle 1 plus angle 2 plus angle 3 equals to 120. Okay, this is what the angles of property of a triangle states. Now ये इस चीज को हम लोग दो तरीके से प्रूव कर सकते हैं. तो हम लोग का जो थ्योरम 6.7 है वो क्या बताता है कि the sum of the interior angles of a triangle is equal to 120. यही जो एंगल सम प्रॉपर्टी है इसी को बताता है. So we can use this, we can prove this theorem using two different approaches. Okay, फर्स्ट हम लोग यूज कर सकते हैं ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस का कांसेप्ट यूज कर सकते हैं, और सेकंड यूज कर सकते हैं एक्सटीरियर एंगल्स का प्रॉपर्टी, जो लास्ट क्लास में मैंने बताया था ना, याद है? Do you guys remember this theorem, this property, हाँ. property? हाँ, इसको यूज कर भी कर सकते हैं. So I will show both of them. So this is the first approach. एग्जाम में कोई भी एक कर सकते हो, नो प्रॉब्लम. You can pick any one which you like. So let us start. So हम लोग फर्स्ट प्रूफ कैसे करेंगे, यूजिंग ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस. ओके, सो लेट मी ड्रॉ अ ट्रायंगल हियर. सपोज दिस इज द ट्रायंगल. ओके, सो इस ट्रायंगल का मैं नाम दे देता हूँ ए बी सी और बी सी. राइट, कॉमन ट्रायंगल. कौन सा लग रहा है, इसी पे नहीं, कौन यथार्थी. So this is our triangle. It has three angles. Obviously, these are the three angles. Interior angles हो सकते हैं. अभी इसको मैं क्या लिखूंगा? Obviously, I am not given anything, so I have to write let ABC be a triangle in which the interior angles are which angle? This is the first angle, so BAC, angle ABC, that is this angle, and angle ACB. Okay, समझ में? What we have to prove? To prove angle BAC plus angle ABC plus angle ACB equals to 120. Okay, this is what the theorem has to say. Now here we have to draw a construction. Okay, कंस्ट्रक्शन क्या होगा? सिंपल चीज होगा कंस्ट्रक्शन. कंस्ट्रक्शन में क्या करना है? We have to draw a line which is parallel to line BC. Okay, so what we will do? We will draw parallel line, suppose DE. Okay, we draw line DE which is parallel to BC. So we draw line DE parallel to BC. इतना तक सबको समझ में आया? हाँ. Yes, sir. हाँ सर. Yes, sir. So this is our proof. जब प्रूफ स्टार्ट करेंगे, ऑब्वियसली देखो यहाँ पे, नाउ वी हैव टू थिंग्स. पहले देखो यहाँ पे, ये जो एंगल है, कैन आई से दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल? क्यों? बिकॉज this is parallel to this and this is the transversal, है कि नहीं? सिमिलरली ये जो एंगल ये एंगल किसके साथ इक्वल होगा? इस एंगल के साथ, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्यों? बिकॉज ये दोनों लाइंस पैरेलल है, BC और PE पैरेलल है और
AC क्या है, ट्रांसवर्सल, समझ में? सो लेट अस राइट नाउ. So in this diagram we have at point A. Point A क्या होगा? Point A में क्या होगा? Point A में angle DAB. What is this DAB? DAB angle ये है. ये एंगल और ये एंगल मिलके क्या बनाता है? It forms a straight line, है कि नहीं? So that is why we can say that this is 180. हाँ straight angle होगा. तो obviously ये क्या हो रहा है? Since D is a straight line, so we can say DAB plus angle BAC plus angle BAC plus angle क्या होगा? Plus angle ये वाला क्या है? CAE equals to 180 degree. Why? Reason क्या है? Straight angle, है कि नहीं? है या नहीं? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ सर. Yes, sir. हाँ. So Yes sir. suppose this is our equation 1. Now what we'll do? We'll use the parallel line concept जो हम लोगों के पास ये है. So now DE is parallel to BC and क्या होगा? DE parallel to BC और AB is the transversal, है कि नहीं? AB एक transversal है. AB is transversal, okay? So therefore we can say, therefore angle DAB is equal to angle क्या होगा? This angle will be equal to this angle, है कि नहीं? क्यों होगा? Because these two are alternate interior angles, है कि नहीं? So we can say it is equal to angle ABC. So reason लिखना पड़ेगा, alternate interior angles. Okay. Also DE is parallel to BC and क्या होगा? AC, ठीक है? अभी AC को ट्रांसवर्सल पकड़ेंगे. So and AC is transversal. So therefore we can say ये जो एंगल है, ये दो एंगल्स इक्वल होगा, मतलब this angle and this angle. Why? ये parallel, ये this parallel to this and this is the transversal. So we can say angle CAE, ठीक है? Angle CAE is equal to angle CAE equals to angle ACB, है कि नहीं? Okay. Same reason goes here as well. So this is the like ये क्यों है? ये भी तो alternate interior angles होगा. समझ में आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? हाँ. Yes sir. Question 3, okay. This is question 3. So what we can say? अभी देखो यहाँ पे CAE और DAB का मुझे दो वैल्यूज मिल गया. So we can say substituting the values of angle DAB and angle CAE. DAB and angle CAE from 2 and 3 into in equation 1. You get क्या मिलेगा? इक्वेशन 1 में अगर मैं DAB, सो इक्वेशन को फिर से लिख देते हैं. इक्वेशन 1 implies angle DAB plus angle
BAC plus angle CAE plus angle CAE equals to 180 डिग्री। ये था हम लोगों का इक्वेशन 1। सो अभी DAB में क्या बैठाऊंगा? DAB में मैं ये वैल्यू बैठाऊंगा, DAB इक्वल्स टू एंगल ABC। सो आई कैन राइट ABC इन प्लेस ऑफ DAB। BAC को ऐसा ही रहना दो, और CAE की जगह में क्या लिखूंगा? CAE की जगह में लिखूंगा AC। ठीक है, समझ में आया? ये तो दिया था ना क्वेश्चन में। ABC कौन सा है? ABC ये वाला है, दिस वन। सॉरी ये, हाँ ABC ये वाला है, ये वाला सेकंड वाला। BAC तुम्हारा ये वाला है, BAC ऊपर वाला एंगल A। और ACB कौन सा वाला है? ये वाला। समझ में आया कैसे किया? Everyone understood the first approach? सबको समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. So this was the first approach. Now coming to the proof का second approach. Proof का second approach, okay? एक ही चीज है, बट यहाँ पे हम लोग दूसरा कॉन्सेप्ट यूज करके प्रूफ करने की कोशिश करेंगे। सो द फर्स्ट पार्ट इज द सेम, एक ही चीज होता है। सो वी कैन जस्ट कॉपी दिस पार्ट, सिर्फ कंस्ट्रक्शन पार्ट अलग होगा ऑब्वियसली, won't be able to use the same thing. So second approach में मुझे ये नहीं चाहिए, I do not need the parallel lines, okay? So what we will do here, कंस्ट्रक्शन पार्ट से अलग होगा यहाँ पे। So what I can say is that so इसी डायग्राम में हम लोग एक चीज करेंगे। कौन बार बार लीव करेंगे? So in this diagram what we will do, we will extend this line। कौन सा वाला लाइन? इस लाइन को हम लोग एक्सटेंड करेंगे, ठीक है? So what we will do, we will try to extend this line. सॉरी एक चीज भूल गया था यहाँ पे, इस लाइन को तुम ऐसे ड्रॉ नहीं कर पाओगे, रिमेम्बर दैट। बोला था ना लास्ट क्लास में, बट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ इट यूजिंग डॉटेड लाइन, है कि नहीं? समझ में आया? कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट हर बार डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना। सिमिलरली यहाँ पे क्या किया, वी हैव ड्रॉन एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है? We extend side BC to कौन सा वाला? तो यहाँ पे एक पॉइंट D है, to D such that angle ACD is an exterior angle of triangle ABC। समझ में आया? क्लियर? समझ में आया यहाँ पे क्या किया? हाँ. बाकियों को समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
अभी बताओ यहाँ पे तुम्हारा जो कंस्ट्रक्शन पार्ट है ये हम लोगों ने कर दिया। अभी जो चीज है वी कैन से दैट ये वाला प्रूफ है। ओके, तो प्रूफ में क्या करेंगे, एकदम सिंपल चीज है। पहला चीज है distance is an exterior angle, so we can say we know the exterior angle of a triangle is equal to the sum of its opposite interior angles। समझ में आ रहा है? So therefore you can say angle ACT is equal to angle, कौन सा वाला होगा, this angle will be equal to this angle plus this angle। समझ में आया? सबको समझ में आया? हाँ। So that will be equal to angle BAC plus angle BAC plus angle ABC। So this is our equation। ओके, तो ये हो गया हम लोग एंगल ACD। अभी हम लोग क्या करेंगे, we can also say angle ACB and angle ACD, मतलब कौन सा एंगल, this angle and this angle, what do they form, बताओ, ये एंगल और ये एंगल क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर। यस, लीनियर। ओके, तुम लोग सबको बोल रहा हूँ कॉन्सेप्ट रिलेट करने की कोशिश करना, ठीक है, जो जो पढ़ा है उसको वो कौन सा जगह में अप्लाई हो रहा है उसको सोचने का कोशिश करना, ठीक है, देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस काइंड ऑफ सम, अदरवाइज कांट नहीं पढ़ोगे। ओके, बिकॉज एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन दे सकता है जिसको तुमने किया नहीं, बट दैट इज वेरी सिंपल। क्यों सिंपल है, बिकॉज तुमने जो सीखा है क्लास में उसी को यूज करना है, तो उस कॉन्सेप्ट को यूज करने के लिए ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो एंगल ACB एंड एंगल ACD, ठीक है, so angle ACB and angle ACD form a linear। so linear pair होने से क्या होगा, therefore linear pair का sum always क्या होता है, क्वांटिटी होता है, ठीक है। so what we can do, we can say substituting the value of angle ACD from equation 1 in equation 2, we get, तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 2 क्या था, इक्वेशन 2 हम लोग का था एंगल ACB प्लस एंगल ACD ये वाला इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, दिस आवर इक्वेशन। सो अभी हम लोग क्या लिखेंगे, वी कैन से एंगल ACB प्लस एंगल ACD की जगह में क्या लिखेंगे, ये वाला BAC प्लस ABC। सो आई कैन राइट एंगल ACB प्लस एंगल कौन सा वाला, एंगल ACB और ACD की जगह क्या लिखेंगे, ये दो लिखेंगे, दिस वन है कि नहीं, ये लिखेंगे बिकॉज ACD को हम लोग इससे इक्वल दिखा दिया है। सो BAC प्लस ABC। ओके, यू कैन राइट हियर BAC प्लस ABC। तो क्वेश्चन में क्या पूछा था, एंगल BAC,
सो इसको रीअरेंज करके लिख देते हैं, एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए सी बी, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी। एक चीज तुम लोगों को बोल दो, एग्जाम में अगर ऐसा टाइप का क्वेश्चन दिया है सो ट्राई टू राइट इट इन दिस ऑर्डर ओनली, ओके। ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करना। देखो ये लाइन और ये लाइन सेम है, बट मैंने क्यों ऐसे लिखा, क्योंकि प्रूफ में मेरा इस फॉर्मेट में था, ठीक है। तो प्रूफ की तरह प्रूफ में ये फॉर्मेट था, ये फॉर्मेट नहीं था, सो इसलिए जस्ट रीअरेंज द टर्म्स, ठीक है, टू मेक इट सेम एज दैट व्हिच हैज टू बी प्रूफ, ठीक है। उसी प्रूफ वाले स्टेटमेंट को मैंने क्या किया, टू प्रूफ वाले स्टेटमेंट को लास्ट में लिख दिया, देन ओनली आई कैन से समझ में। तो एग्जाम में यहाँ तक करके छोड़ मत देना, ओके। ट्राई टू डू दिस स्टेप एज वेल, ठीक है। समझ में आया? हाँ। दोनों अप्रोचेस क्लियर है सबको? क्लियर हुआ? अदर्स, नवोदीप, ऋषिकेश, काब्बिक? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो ये हो गया हम लोगों का एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर ट्रायंगल। तो दैट पार्ट इज ओवर। अभी हम क्या करेंगे, और एक थ्योरम है, थ्योरम 6.8। सो वी कैन सॉल्व दिस एज वेल। यहाँ पे थ्योरम 6.8 क्या बताया कि इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो प्रोड्यूस फॉर्म्ड इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। सो ये वाला भी मैं दिखा सकता हूँ, दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। सो ये कैसे करते हैं ये एग्जाम में दे सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इस चैप्टर में थ्योरम बहुत है और हर एक थ्योरम को प्रूव करने का कोशिश करना है। तो ये थ्योरम क्या बताता है कि इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस, मतलब जो एक्सटर्नल एंगल से बनाना है, द साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, if the side of a triangle is produced then the extra angle so formed, द साइड नहीं ए साइड, तीन साइड होता है ना, तीनों साइड को एक्सटेंड कर सकते हैं। सो इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म, एंगल सो फॉर्म is equal to the sum of the sum of the opposite angles, sum of the two interior opposite angles, okay। समझ में आया? दिस इज थ्योरम 6.8। सो अभी हम लोग इसको प्रूव करेंगे, तो इसको प्रूव करना टेक्निक बहुत इजी है। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ड्रॉ ए ट्रायंगल एंड देन ड्रॉ इट्स एक्सटीरियर एंगल, ओके। दिस इज द ट्रायंगल, पता बोला ड्रॉ करता हूं। सो दिस इज द ट्रायंगल, सो ट्रायंगल ए बी सी, ओके, सेम आगे की तरह है। यहाँ पे डॉटेड लाइन नहीं चाहिए, क्यों डॉटेड लाइन नहीं चाहिए, बिकॉज क्वेश्चन में तो एक्सटर्नल एंगल ड्रॉ करने के लिए बोला है ना, सो वी डोंट नीड डॉटेड लाइन, ओके। ठीक है, सो ये होगा हम लोग का रे, एक्सटेंशन रे हो गया। सो दिस इज डी, नाउ दिस इज द एक्सटीरियर एंगल, ओके। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल in which angle BAC, angle angle ABC and
angle ACB are the interior angles. Okay. Also, side BC is extended to D such that side BC is extended to D such that AC such that angle ACT ये वाला एंगल, ठीक है। ये वाला एंगल क्या है? ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल इज एन एक्सटीरियर एंगल। यहाँ पे और एक चीज लिखना है, द इंटीरियर एंगल्स opposite to angle ACD are एंगल कौन सा एंगल? एंगल BAC एंड एंगल ABC। इतना तक क्लियर हुआ सबको? क्लियर हुआ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सो ये हो गया हम लोग का इंटीरियर एंगल्स, अपोजिट एंगल्स ACD एंड एंगल BAC। अभी हम लोग को प्रूफ क्या करना है? वी हैव टू प्रूफ क्या है? प्रूफ में हम लोग का आएगा यही वाला, मतलब ये जो दो एंगल्स है ऑपोजिट एंगल्स, इन दोनों को सम करेंगे, प्लस करेंगे तो ये इसका वैल्यू मिलेगा। सो वी हैव टू प्रूफ एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल BAC प्लस एंगल ABC। ठीक है, समझ में आया? समझ में हाँ, आया sir. सबको? Yes, sir. सो ये कैसे करेंगे? किसी को कोई आइडिया? एनी आइडियाज? हाँ, ट्रायंगल वाला कैसे करेंगे? सोचो थोड़ा सा, सिंपल सा चीज है। किसी को कोई आइडिया है? यहाँ पे भी हम लोग पैरेलल लाइंस का यूज कर सकते हैं। ओके, देख लो, ये प्रूफ तुम लोगों ने ऑलरेडी किया है, क्लास 7 में किया है, फिर से समझा दे रहा हूँ, तुम लोग शायद भूल गए हो, बट इट्स नेवर टू लेट टू रिमेम्बर, नेवर टू लेट टू लर्न। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे फ्रॉम सी विच इज पैरेलल टू व्हाट? पैरेलल टू AB। समझ में? सो सपोज दिस इज E। ओके, सो ये वाला कंस्ट्रक्शन में है, समझ में आया? तो कंस्ट्रक्शन में क्या आएगा, वी ड्रॉ लाइन, तुम्हारा क्या था ये, CE फ्रॉम पॉइंट C, फ्रॉम वर्टेक्स C, सॉरी पॉइंट C नहीं, इसको वर्टेक्स C भी बोल सकते हैं, फ्रॉम वर्टेक्स C of triangle ABC such that C is parallel to AB। सबको समझ में आया? That this is parallel to this। Clear? Yes, sir.
क्लियर हुआ? शाश्वती क्लियर हुआ? हाँ याद है ये प्रूफ? याद है किसी को? किया हुआ है तुम लोगों ने प्रूफ ये? ठीक है, याद नहीं है तो छोड़ो अभी। सो अभी हम लोग एक चीज करेंगे, मैं पहले ही तुम लोग को डायग्राम दिखा दे रहा हूँ। सो इसको हम लोग पैरेलल लाइंस का जो कॉन्सेप्ट है उसी को यूज करेंगे। किसी पैरेलल लाइंस यूज किया तो ऑब्वियसली यूज करना ही पड़ेगा इसको। सो कैसे करेंगे? यहाँ पे तुम्हारा प्रूफ पार्ट लिखेंगे। प्रूफ पार्ट में अगर तुम्हारा तकलीफ होगा तो आई कैन कॉपी दिस डायग्राम। तो नीचे में ड्रॉ करो। ओके, तो सपोज दिस इज द डायग्राम। अभी हम लोग क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। सो प्रूफ के लिए क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू यूज द सेम प्रॉपर्टी, ट्रांसवर्सल और पैरेलल लाइंस का प्रॉपर्टी यूज करना पड़ेगा। सो वी हैव, हम लोग के पास क्या है? हम लोग के पास है ए बी पैरेलल टू ई सी। ओके, ए बी पैरेलल टू सी भी बोल सकता हूँ। ए बी पैरेलल टू ई सी होगा। ओके, सी नहीं होगा, इसको अच्छा से लिखना। हाँ, ये ई सी होगा, मतलब ऐसा है ना, ए टू बी है, सो यहाँ पे ई टू सी होगा, नॉट द अदर वे। पैरेलल लाइंस कैसे लिखते हैं समझ में आया? हाँ सो ए बी पैरेलल टू ई सी है और ए सी ट्रांसवर्सल। अभी हम लोग अगर ए सी को ट्रांसवर्सल ले रहे हैं, है ना, ये दो पैरेलल लाइन से है, ये ट्रांसवर्सल है, एंड वी कैन से ए सी इज द ट्रांसवर्सल। तो देयरफॉर वी कैन से, तो ये दो पैरेलल लाइन्स है, तो ये किसकी तरह है? ऐसा है ना। तो ये दो एंगल्स क्या ही होगा? व्हाट आर दिस टू एंगल्स? सपोज मैं इन दोनों को एक्सटेंड कर देता हूँ, तब क्या होगा? एनीवन? व्हाट आर दिस टू एंगल्स? ये एंगल और ये एंगल क्या है? क्या है? Sir, corresponding angles. अरे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्या बात कर रहे हो? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। आप देख, दिस टू एंगल्स आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या समझा तुमको? alternate interior angles. यस, ऑब्वियस ऑल्टरनेटिंग एंगल्स। देखो, एक ट्रांसवर्सल के इस साइड में आ रहा है, देखो ना, मैं एक्सटेंड करके दे रहा हूँ ना। देखो, एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड में, एक ट्रांसवर्सल के राइट हैंड साइड में, तो दोज आर ऑल्टरनेट एंगल्स, है कि नहीं? और दोनों इंटीरियर है, सो दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। काबे थोड़ा पढ़ना। हाँ, कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट अभी भी वीक है। हाँ सर। ये सब का कॉन्सेप्ट अभी अभी अगर समझ में नहीं आएगा ना, तो जब क्लास 10 में उठोगे, जब सर्कल्स के एक सर्कल के अंदर तुमको ट्रायंगल दे देगा ना, तब हालत खराब हो जाएगा। यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड एनीथिंग। इसलिए मैं बता रहा हूँ, अभी ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करिए, तो फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, क्लास 7 का कॉन्सेप्ट है। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे? कौन सा एंगल होगा? एंगल बी ए सी, समझ में? एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई, है कि नहीं? बोल सकता हूँ? बोल सकता हूँ कि नहीं? बोलो। दिस एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए सी ई। समझ में आया? समझ में आया? हाँ हाँ सर।
ऑल्सो Yes, sir. अभी जो नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? तो ये तो हम लोग का पहला पार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट पार्ट क्या होगा? नेक्स्ट पार्ट होगा तुम्हारा सेम, हम लोग का ये दोनों पैरेलल लाइंस यूज करेंगे, बट यहाँ पे ट्रांसवर्सल अलग यूज करेंगे। अभी हम लोग कौन सा वाला ट्रांसवर्सल यूज करेंगे? ये वाला। ये वाला मतलब है कि नहीं? ये दो पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है कि नहीं? बीच से ट्रांसवर्सल होगा। बीसी या फिर बीडी भी बोल सकते हो, ये दिस एंटायर लाइन इज ट्रांसवर्सल बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है कि दिमाग के ऊपर से जा रहा है? तुम लोग आइडेंटिफाई कर पा रहे हो कि नहीं? बोलो। हाँ। तो अभी क्या है? दिस एंड दिस आर, ये और ये लाइन पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल है। सो अब एक आप देख बताओ, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा? अगर कोई डाउट हो तो यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। क्या एंगल होता है इसका? कौन सा वाला एंगल है ये? सेम साइड में है, ये भी एक्यूट है, ये भी एक्यूट है, सेम इंक्लिनेशन में है। क्या बोला जाता है इनको? समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ। कौन सा एंगल होगा सरस्वती? सर फिर से बताइए, आवाज कट रहा था। अरे आवाज कट रहा है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है क्या? बोलो, ये दो एंगल कौन सा वाला एंगल है? व्हाट काइंड ऑफ एंगल आर दिस टू? ये इक्वल क्यों हुआ? ऋषिकेश, कौन सा वाला एंगल है? एंगल ए बी सी इज दिस वन, एंड एंगल ए सी डी या फिर ई सी डी, ठीक है, ए सी डी नहीं, ई सी डी, ये वाला ये है। तो ये दो एंगल्स क्या क्या है? क्या बोला जाता है इनको? थोड़ा सा सोचो, सोच के बताओ। आई वांट द रीजन। ओके, क्या एंगल्स बोला जाता है इनको? शाश्वती? Corresponding angles. यस, कोरस्पोंडिंग एंगल्स। तुम लोग क्या मिला नहीं पाते हो क्या? इतना अच्छा से समझाया था उस दिन, नोट्स भी दिया। अगर नोट्स भी घर में लिखते तो समझ में आ जाता। कोरस्पोंडिंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में अगर तुम अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हो ना, बहुत प्रॉब्लम होगा बाद में, ये बोल रहा हूँ। ठीक है, कोरस्पोंडिंग एंगल्स होगा ना, ये क्या होता है? कोरस्पोंडिंग एंगल्स होता है ना, है कि नहीं? ये क्या होता है? कोरस्पोंडिंग एंगल्स होता है कि नहीं? बोलो। हाँ सर। तो सेम साइड में है, सेम इंक्लाइनेशन में है, तो ऑब्वियसली कोरस्पोंडिंग एंगल से होगा। ये हम लोग का नंबर 2। अभी हम लोग क्या करेंगे? वी विल ट्राई टू राइट द एंगल ACD। तो ACD जो है, ACD क्या है? दिस ACD, इसमें ये ACD मतलब ये पूरा एंगल, दिस होल एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, दिस स्मॉलर टू एंगल्स। सो आई कैन राइट नाउ एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल ACE, है कि नहीं? AC मतलब कौन सा वाला एंगल? ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिलके क्या होगा? दे विल गिव अस एंगल ACD, दैट इज द होल एंगल। ये पूरा वाला एंगल मिलेगा, है कि नहीं? सो ACE एक होगा और ECD एक होगा। तो AC क्या है? AC हम लोग को मिला था यहाँ पे एंगल BAC होगा, ठीक है।
और ECD क्या होगा? ECD होगा एंगल ABC, सो आई कैन राइट ABC। तो ये क्या कहाँ से मिला? फ्रॉम 1 and 2, है कि नहीं? सो देयरफॉर तो हो गया हम लोग का, यही था प्रूफ, यही था ना, ACD एंगल ACD इक्वल्स टू एंगल BAC प्लस ABC, एंगल BAC प्लस ABC हो गया। दिस इज समझ में आया? समझ में आया? हाँ हाँ सर। हाँ सर। 5 मिनट होल्ड यस करो। हाँ, सर। तो समझ में आया ये सबको? ये प्रूफ, ये थ्योरम का प्रूफ देखा। हाँ, ये वाला थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली, क्लास 7 वाला चीजें तुम लोग फिर से पढ़ रहे हो। ये प्रूफ समझ में आया सबको? हाँ ओके, so, अभी हम लोग पढ़ेंगे तुम्हारा इसी का कुछ कुछ सम्स है, so we'll try to do some of the examples। so ये वाला देखो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? इस डायग्राम को देखो, बहुत सिंपल सा डायग्राम। so यहाँ पे देखो, यू विल गेट टोटल ऑफ 3 ट्रायंगल्स। कैसे? 3 मतलब ज्यादा ट्रायंगल ही है, बट यहाँ पे तुम्हारा सो 3 ट्रायंगल्स है, तो 3 ट्रायंगल्स में से क्या होगा, तुम्हारा यहाँ पे गिवन है कि QT जो लाइन है, QT किसके ऊपर परपेंडिकुलर है? PR के ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है। उसके बाद QT PR के ऊपर परपेंडिकुलर है, और एंगल TQR जो है, TQR कौन सा है? TQR मतलब ये वाला एंगल कितना है? 40 डिग्री, और SPR जो है, SPR ये 30 डिग्री। तो निकालने क्या दिया है? Y निकालने दिया है और X निकालने दिया है। तो टेक दिस ट्रायंगल फॉर एग्जांपल। सो इस ट्रायंगल में क्या है? तो नीचे वाला ट्रायंगल है QTR, दिस इज अ ट्रायंगल, दिस इज राइट ट्रायंगल, है कि नहीं? तो ये जो राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में बहुत सिंपल है, T जो है, T 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। सो आई कैन आई से दैट एंगल TQR मतलब ये 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस x विल गिव मी 180 डिग्री, है कि नहीं? तो इससे हम लोग को क्या मिल जाएगा? आई विल गेट द वैल्यू ऑफ x। तो x निकाला उन लोगों ने 50 डिग्री। समझ में आया? कौन सा ट्रायंगल लेके किया? नीचे वाला ट्रायंगल, दिस ट्रायंगल, ट्रायंगल QTR, इसको लेके इसमें हम लोग क्या एंगल सम प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? y निकालना पड़ेगा। तो अभी y के लिए देखो, इफ यू कंसीडर द ट्रायंगल PSR, इस ट्रायंगल को अगर तुम कंसीडर कर रहे हो, सो कैन आई से 30 डिग्री प्लस x इज इक्वल टू y। क्यों? ये x ट्रायंगल है कि नहीं? एंगल QSP, PSQ जो एंगल है, ये y का जो वैल्यू है, दिस y एंगल y इज व्हाट? एंगल y इज द एक्सटीरियर एंगल इस ट्रायंगल का। कौन सा है ट्रायंगल का? PSR का। सो इस एंगल का ऑपोजिट एंगल्स, इंटर एंगल्स क्या है? 30 डिग्री और r है, मतलब ये x है। सो कैन आई से 30 प्लस x इक्वल्स टू y। सो ऑब्वियसली x का वैल्यू तो पता ही है, तो y का वैल्यू कितना होगा? 30 प्लस 50, x का तो वैल्यू 50 निकला, सो दैट विल बी इक्वल टू 80 डिग्री। समझ में आया सम? एक ही सम में दो दो थ्योरम हम लोगों ने यूज किया। अंडरस्टूड? हाँ यस सर। यस सर। यस सर। नाउ कमिंग टू दिस सम, ये वाला सम देखो, ये वाला सम भी इजी है। यहाँ पे क्या बोला है कि एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC, ये वाला ट्रायंगल है। क्या किया उन लोगों ने? AB साइड को एक्सटेंड किया और AD साइड को एक्सटेंड किया। सो इन दैट वे दो एक्सट्री एंगल फॉर्म हुआ। कौन सा एक्सट्री एंगल? EBC, ये जो एंगल है ये फॉर्म हुआ एक्सट्री एंगल, और DCB, दिस एंगल वाज फॉर्म। ओके, these are the two extreme angles
अभी क्या हो रहा है, इन दोनों एक्सट्रीम एंगल्स का एंगल बाइसेक्टर जो है, एंगल बाइसेक्टर को क्या किया उन लोगों ने, पॉइंट ओ में मीट करा है, ठीक है। सो आई कैन से BO इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल EBC एंड OC इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल BCD। समझ में आया? हाँ डायग्राम क्लियर है? डायग्राम में क्या बोला है एवरीवन? कबिक डाउट है क्या? डायग्राम डायग्राम समझ में आया? हाँ सर। ऋषिकेश, नवोदय, क्या हुआ? आवाज नहीं है? Yes, sir. सर। यस यस के बोल के फायदा नहीं है, अगर समझ में नहीं आएगा ना बताना, नहीं तो जब खुद से करोगे तब समझने का कोशिश करना। एकदम सिंपल है, जो स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया है, ट्राई टू कंपेयर इट विद द डायग्राम। ओके, तो ये सब सामने तो इजी है, डायग्राम दिया रहता है। अभी प्रूफ करने के लिए क्या दिया है, प्रूफ करने दिया है कि एंगल BOC जो होगा, एंगल BOC, ठीक है, ये वाला एंगल, दिस वन, समझ में आया? ये जो यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, यस सर। तो दिस एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस हाफ ऑफ एंगल BAC, मतलब ये वाला x, समझ में? x का हाफ होगा, माना माइनस करना पड़ेगा 90 डिग्री से, अगर माइनस हाफ x करेंगे तो आई विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस एंगल BOC, ठीक है। तो इसको करने का एकदम सिंपल टेक्निक है। यहाँ पे जो एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर क्या कर रहा है, हाफ कर रहा है कि नहीं? किसका हाफ कर रहा है? इस एंगल्स का, एक्स्ट्रा एंगल का हाफ कर रहा है। सो आई कैन से एंगल EBO इज इक्वल टू एंगल OBC, ठीक है, समझ में आया? एंगल EBO इक्वल्स टू OBC, everyone clear? So this angle is equal to this angle. Similarly, for this angle bisector, this angle मतलब एंगल BCO इक्वल्स टू एंगल OCD, ठीक है। सो आई कैन से एंगल CBO जो है, CBO जो ये वाला एंगल है, ये दिस वन इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल दिस वन, हाफ ऑफ द एंटायर एक्सटीरियर एंगल, है कि नहीं? ये आधा, तो आधा पूरा का आधा हुआ ना, वही हुआ। अगर ये दोनों इक्वल हुआ तो दिस इज इक्वल टू दिस, दैट मीन्स दिस इज हाफ ऑफ द एंटायर एंगल, मतलब CBO इज हाफ ऑफ एंगल CBE, ठीक है। क्लियर एवरीवन? yes नाउ जो हाफ ऑफ एंगल CBE मिल गया हम लोगों को, 90 माइनस, तो दिस इज इक्वल टू y, तो उन लोगों ने y लिख दिया यहाँ पे। सो कैन आई से दिस इज इक्वल टू x प्लस जेड। x प्लस जेड क्या है? x प्लस जेड इज नथिंग बट 180 डिग्री माइनस y, बोल सकता हूँ, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। x प्लस वाई प्लस जेड कितना होता है? x प्लस वाई प्लस जेड होता है तुम्हारा 180 डिग्री। सो कैन आई से x प्लस जेड इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस y, लिख सकता हूँ? हाँ यस सर। सो ये एंगल, पूरा एंगल क्या होता है? दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल, है कि नहीं? जो एक्सटीरियर एंगल का जो मेजर होगा दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स, ओके। सो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स होगा, सो ऑब्वियसली क्या हो रहा है यहाँ पे, आई कैन से this angle is equal to this plus this, but is this plus this equal to y minus 180 minus y, समझ में आ रहा है? सो 180 माइनस y इक्वल टू, यहाँ पे CB के जगह में मैंने ये लिख सकता हूँ ऑब्वियसली, तो 90 डिग्री माइनस y बाई टू इज इक्वेशन 1। अभी CO जो है, CO में भी सेम करेंगे। यहाँ पे ये जो BCO होगा, ये वाला एंगल होगा, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 90 माइनस z बाई टू, ठीक है। क्यों z बाई टू होगा? मतलब यहाँ पे हाफ किया, मतलब हाफ ऑफ एंगल 180 डिग्री माइनस z। ये समझ पा रहे हो कि नहीं?
हाँ सो ये तो इक्वेशन हम लोगों को मिल गया। सो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग क्या करेंगे, इस एंगल को लेंगे, ट्रायंगल बीओसी। तो बीओसी में ये जो ये वाला एंगल मिल गया हम लोगों को। आई नो दिस एंगल, आई नो दिस एंगल, आई हैव टू फाइंड दिस एंगल। तो कैसे निकालेंगे, दिस प्लस दिस विल गिव अस 180 डिग्री, बिकॉज एंगल बीओसी में 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी होगा। सो बीओसी होगा, तो एंगल बीओसी प्लस एंगल ओबीसी। ओबीसी क्या है, ओबीसी है ये, है कि नहीं, 90 माइनस वाई बाई टू, दिस ओबीसी। ओबीसी मतलब ये वाला, दिस एंगल। और लास्ट वाला जो एंगल है ये वाला, तो दैट इज इक्वल टू 90 माइनस जेड बाई टू। तो इनको अगर प्लस करेंगे विल गेट हाफ ऑफ वाई प्लस जेड। ठीक है, तो एंगल बीओसी क्या मिलेगा, ये वाला क्या मिलेगा, दिस एंगल विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ वाई प्लस जेड, ये वाला मिलेगा, इक्वेशन 4। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, वी कैन, तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, वी हैव गॉट हाफ ऑफ वाई प्लस जेड, है कि नहीं। सो कैन आई से x plus y plus z equals to 180 degree, this x plus y plus z equals to triangle ABC में, तो that is equal to 180 degree। अभी इसी चीज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y plus z को और एक चीज लिख सकते हैं, we can write it 180 minus x, है कि नहीं, I can write 180 minus x, क्योंकि y plus z हम लोगों के पास ऑलरेडी है। सो y plus z के जगह में क्या लिख सकते हैं, 180 minus x लिख सकते हैं। ठीक है, सो 180 minus x लिख दिया। अभी ये x का वैल्यू जो होगा, आई कैन राइट 180 माइनस एक्स वाई प्लस जेड इक्वल टू 180 माइनस एक्स, तो ये लिख दिया। सो ये जो एंगल बी और सी इक्वेशन 4 जो निकला था, उसमें हम लोग क्या करेंगे, y प्लस जेड का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। सो व्हाट आई कैन राइट हियर, आई कैन राइट इन प्लेस ऑफ y प्लस जेड आई कैन राइट 180 माइनस एक्स, तो 180 माइनस एक्स लिख दिया, दैट इज इक्वल टू 90 माइनस एक्स बाई 2। और x हम लोग का क्या था, x हम लोग का था ये एंगल बी ए सी था, बी ए सी। समझ में आया सम। समझ में आया कि डाउट है, डाउट है। बोलो, तुम लोग नहीं बोलोगे तो क्या, समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो, आइदर ऑफ द टू। समझ में आया है। अदर्स, काव्यिक, Yes, sir. काव्यिक किसी पोर्शन में डाउट इस सम का। Sir, no, sir. बहुत सिंपल सम है, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करोगे तब समझ में आ जाएगा। इट्स अ वेरी इजी सम। सर इजी है, इतना भी टफ नहीं है। हाँ वो इजी है, बट प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एग्जाम के sir. पहले दिन मैं कर लूंगा और एग्जाम में जाके मैं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं है। ज्योमेट्री का सम्स ऐसा नहीं होता, ज्योमेट्री का सम्स थोड़ा डिफिकल्ट होता है। डिफिकल्ट इन द सेंस, इफ यू आर नॉट इन कांस्टेंट प्रैक्टिस, कांस्टेंट टच में अगर नहीं रहोगे तब एग्जाम में जाके टफ लगेगा, और अगर कांस्टेंट टच में रहोगे, कांस्टेंट प्रैक्टिस करोगे, तब एग्जाम में इजीली कर पाओगे, तब एग्जाम में जाके या फिर नेक्स्ट टाइम जब करोगे तब इजीली। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द सम्स। और देखो तुम लोग का जो अभी तक, जैसे एक्सरसाइज 6.3 है, तो 6.3 तक जितना भी थ्योरम्स तुम लोगों ने पढ़ा है, तो वही थ्योरम्स अल्टीमेटली यूज होगा। समझ में आ रहा है। हाँ सो ट्राई टू अंडरस्टैंड द थ्योरम्स, ट्राई टू डू द प्रूफ ऑफ द थ्योरम। प्रूफ अगर कर लोगे तब समझ में आएगा, थ्योरम भी समझ में आएगा, थ्योरम आया कैसे उसको वो भी समझ में आएगा। ठीक है, सो ट्राई टू डू दिस सम्स। तो एक्सरसाइज 6.3 यहाँ तक है, हो गया, चैप्टर खत्म। कितना तक ही था क्या तुम लोग का, वो नहीं है वो तो राइट एंगल थ्योरम ये सब नहीं है, तो होना चाहिए, तुम लोग का नहीं है। तो ट्राई करना, ये एक्सरसाइज बहुत इंटरेस्टिंग है। एंगल बाइसेक्टर्स कैसे काम करता है, एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या है, एक बार एग्जांपल सम्स कर लेना एंड ट्राई टू डू द एक्सरसाइज सम्स। ओके, अगर एक्सरसाइज सम में कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे पूछना। ओके, समझ में आया। Yes, sir. और हाँ, ये sir.
और ये समरी देखना, समरी में जितना भी थ्योरम है इस चैप्टर में सब दिया हुआ है पॉइंट वाइज. सो इफ यू need a quick recap of all the different theorems that you have studied in this chapter, you can refer to the summary part. Okay, so try करना, होमवर्क करना, समझ में आएगा. थोड़ा ट्राई करोगे तभी समझ में आएगा. बहुत इजी सम्स है. थ्योरम अच्छा से प्रूफ करना, प्रूफ वाला बहुत इंपॉर्टेंट, प्रूफ एग्जाम में आता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कोई भी प्रूफ मत छोड़ना. प्रूफ में ऐसा क्या है बोलो तो, प्रूफ अगर अच्छा से करके जाओगे ना, एग्जाम में जब प्रूफ देगा यू विल गेट फुल मार्क्स फॉर द प्रूफ. ओके, मतलब ऐसा नहीं है कि तुमको कुछ अलग Okay, तरीके sir. से, जो तुमने प्रूफ लिखा है, जो मैंने कॉपी में किया है घर में, वो ही लिखना पड़ेगा एग्जाम में. समझ में? सो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हाँ तुमको कुछ अलग दे दिया, तो ऐसा नहीं होता है. ठीक है, समझ में? हाँ. तो इसलिए थ्योरम्स जितना भी मैंने कराया है, तो ट्राई टू मेक श्योर दैट यू डू ऑल द थ्योरम्स. और एक्सरसाइज सम्स ट्राई करना. एक्सरसाइज के पहले एग्जाम्पल सम्स कर लेना. मेरा तो होमवर्क का फॉर्मेट पता ही है, तो उसकी तरह कर लेना. अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड द सम एंड डू. ठीक है, जस्ट डोंट डू इट फॉर द सेक ऑफ डूइंग. समझ में? होमवर्क करना है इसलिए कर दिया. होमवर्क को समझो, क्या कर रहे हो, ये सही कर रहे हो कि नहीं. ट्राई टू मतलब विजुअलाइज द कॉन्सेप्ट. ठीक है, कि हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, ये होगा कि नहीं. ट्राई टू थिंक दोस थिंग्स. समझ में आया? Yes, sir. ओके, तो आज मैं नया चैप्टर नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ, संडे को नया चैप्टर स्टार्ट करूँगा. तो ट्राई टू डू द होमवर्क और थ्योरम्स अच्छा से करना. नोट्स क्लास वर्क का जितना भी करा है अप टू डेट रखना. एग्जाम में जाके तुम लोग का ही फायदा होगा, एग्जाम के पहले. ठीक है, सो थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट. Bye. Good night. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. Good night. Good night.